السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورس کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے اور ہم سب کے دلوں کو ذکر سے آباد رکھے، اور قرآن پاک کے ساتھ اس خوبصورت رشتے کو اور مضبوط کرے، اور قیامت اور حشر میں قبر میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا ساتھی بنائے اور قرآن پاک کو ہمارا سفارش کرنے والا بنا دے، آمین۔ تو چلیے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آج 24ویں رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ البقرہ کے 24 رکوع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے چاند کے بارے میں، آیات مبارکہ جو ہیں وہ نازل ہوئی جب لوگ چاند دیکھ کر ہی اپنے اوقات کا تعین کیا کرتے تھے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، نئے چاند کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، ہیا یہ مواقیت، وقت کا تعین ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے دنوں کا بھی، حج کا موسم آ گیا، اس کا بھی چاند سے ہی پتہ چلتا تھا، اور اسی طرح ہر چیز کا چاند کے نکلنے پر ہی منحصر ہوتا تھا کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا اسلامی، اور اب اس میں سفر شروع کرنا ہے، اور اب میں اس میں تجارت کے لیے سفر بھی ان کا ہوا کرتے تھے شام تک، اور سارا معاملہ جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر ہی عرب لوگ کیا کرتے تھے، تب یہ گھڑیاں کلاک وغیرہ نہیں تھے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بیان یہ کہ تَأْتُوا الْبُیُوتَ، تم آؤ گھروں سے، من ظہورہا، ان کے بیک سے، ان کے پشتوں سے، ان کے پیچھے سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن ہے نیکی، مَنِ اتَّقَىٰ، جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ سے پرہیزگاری اختیار کر گیا، جو متقی ہو گیا۔ وَأْتُوا الْبُیُوتَ، اور آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ بہت اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہوئے کہ لوگ ایسی چیزوں کو نیکی بنا لیتے ہیں کئی دفعہ جو حقیقت میں نیکی نہیں ہوتی۔ حقیقت میں آپ کے قلب کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کا نام نیکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کتنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کیا کچھ چھوڑ رہے ہیں، کون سا گناہ آپ چھوڑ رہے ہیں، کون سی نیکی آپ اپنا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اپنے گھر سے حج سے واپسی پہ اپنے گھروں میں پشت سے آتے تھے، پشت پہ سیڑھی لگا کے تو آتے تھے، شاید یہ اس میں کوئی بڑی مطلب نشانی ہوگی ان کے لیے کہ حج سے واپس آ رہے ہیں، یہ حاجی ہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے منع فرما دیا کہ نہ آؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، ٹھیک ہے، تاکہ تم اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ آئیے اگلے آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ کسی بھی چیز کی زیادتی ہو، الفاظ کی زیادتی ہو، ظلم یا زیادتی، حق نہ دینے کی زیادتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرما دیا۔ اور یہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے حوالے سے جب وہ اتنا بڑا معاملہ ہے جس میں فرمایا کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم ان سے لڑو، وقتلوہم، پھر ایسا لڑو کہ ان کو قتل کر دو، ان کو مارو، حیث، جہاں، ثقفتموہم، تم ان کو پالو، واخرجوہم، اور ان کو نکالو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تم کو نکالا۔ اگر وہ تمہیں اپنے گھروں میں آباد نہیں رہنے دیتے، جنگ کی حالت بنا لیتے ہیں، تمہیں نکالتے ہیں، تم بھی ان کے گھروں سے ان کو نکالو، تم بھی ان کو حالت امن میں نہ رہنے دو۔ والفتنۃ، اور فتنہ، اشد من القتل، قتل سے یعنی مارنے سے بھی زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ فتنہ و فساد برپا کرنا۔ فتنہ و فساد، ہر وقت ان یہود و نصارہ کی ایک ہی چال ہوتی تھی، کسی نہ کسی طریقے فتنہ و فساد، مسلمانوں کے اندر منافقین نکال کر ان میں فتنہ و فساد مچاتے رہنا۔ ولا تقاتلوہم، اور ان سے نہ لڑو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یہاں تک، یقاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فیہ، اس میں، مسجد حرام جس کی حدود مقرر ہیں، ان حدود کے اندر تم ان سے نہیں لڑو، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں اسی حدود کے اندر تو پھر تم ان سے لڑو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں، تم کو ماریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو مارو، كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ ہی یہی ہے۔ اب کافروں کے ساتھ تو اتنی نرمی کا تو حکم کہیں پہ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی حدود حرم ہے، ہمارے لیے حرمت کی چیزیں ہیں، ادب ہے، عزت ہے، تو کافر تو ایسی مطلب ان کے تو کہتے ہیں ہر چیز سے انکار ہے، وہ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جزا ہی یہی ہے،
फ़इन तहू पस अगर वो बाज़ आ जाएँ, फ़इन अल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अगर वो बाज़ आ जाते हैं, लड़ते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला शायद उनके दिल में कोई ऐसी, अल्लाह की रहमत की वजह से उनके दिल में ऐसी नरमी हो कि वो इस्लाम की तरफ राग़िब भी हो जाए। वक़ातिलूहुम, और उनसे लड़ो, हत्ता यहाँ तक कि ला तकूना ना हो जाए फितनतुन, फितना ना रहे, तकून ना रहे, फितनतुन फितना, व यकून दीन, और हो जाए तमाम मज़हब, तमाम दीन, तमाम बंदगी लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए। फ़इन इंतहू, बस अगर वो रुक जाए, फ़ला उद्वाना, तो कोई ज़्यादती नहीं है, इल्ला मगर अला ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर, सिर्फ़ ज़ालिम लोगों पर ही हुक्म है कि उन पर आप कत्ल के बदले में, लड़ने के बदले में, लड़ाई के बदले में लड़ाई करो, लेकिन जो रुक जाएं उन पर कोई ज़्यादती नहीं है। फला उदवाना, कोई ज़्यादती नहीं है। और लड़ना किस वक्त तक है? जब तक दीन सारा अल्लाह ताला का हो जाए। और अब हम क्या है, हम इस जिहाद को ही तर्क कर बैठे हैं। कुफर से जिहाद हमारा नहीं है, ना कलम के साथ, ना इल्म के साथ, ना तलवार के साथ, कुछ भी नहीं है। हम जिहाद में बहुत पीछे हैं, हम अपने किरदार के ही जिहाद में पीछे रह गए हैं ना। हम अपने किरदार की इस्लाह में ही हम बहुत नाकिस हो गए हैं। माओं के किरदार इतने मजबूत नहीं रहे कि वो मोहम्मद बिन कासिम जने, नौजवानों के किरदार नहीं रहे कि वो मोहम्मद बिन कासिम बने। अल्लाह ताला हमारी माओं को किरदार अता फ़रमाए कि वो ऐसे बेटे जने जो मुजाहिद इस्लाम बने और इल्म वाले बने। इल्म सबसे बड़ा इस वक्त जिहाद है, ठीक है। अपने इल्म के ज़ोर पर इस्लाम को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करें। अश्शाहरुल हराम, हुर्मत वाले महीने, बिश्शाहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीनों का बदल है। वल हुरुमात, और तमाम ही हुर्मत वाली चीज़ें, तमाम ही इज़्ज़त वाली चीज़ें किसासुन, बदला होती हैं। यानी कि अगर कोई भी इज़्ज़त देता है आपको, तो उसके बदले में इज़्ज़त देना आप पे वाजिब है। ये नहीं कि आपको कोई तकब्बुर के साथ पेश आए तो आप उसके साथ भी इज़्ज़त के साथ पेश आए, ऐसा इस्लाम में हुक्म नहीं है, ठीक है। हुर्मत वहीं पे है जो वो कोई हुर्मत कर रहा हो। कोई लड़ने आ जाए तो आप उसको हाथ बांध के बैठ जाएंगे आगे से, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने ये चीज़ नहीं, इस्लाम तो इतना फितरती दीन है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जैसे भी इस्लाम को जिस एंगल से भी पढ़ा, बहुत फितरत के पास, हमेशा फितरत के ऐन मुताबिक पाया। इसीलिए तो कहते हैं कि ये दीन फितरत है। इस्लाम के हर हुक्म को मैंने बहुत फितरत के करीब पाया और बहुत आसानी में पाया। तो ये भी ऐसा ही हुक्म है कि हुर्मत का महीने हुर्मत का बदल है, और हुर्मत वाली तमाम चीज़ें एक दूसरे के इवज़ होती हैं। अगर कोई इज़्ज़त देता है तो उसको इज़्ज़त दें, अदरवाइज़ बेशक ना दें, आप पे कोई भी पूछगछ नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि तकब्बुर वाले की बात कर रही थी कि ये तो हदीस मुबारका भी है कि आप मुतकब्बर के साथ तकब्बुर करें तो इसका सवाब है आपको। फामानी तदा, तो जो कोई ज़्यादती करे, अलैकुम, तुम पर, फ़ातदू, तो ज़्यादती करो, अलैहि, उस पर, बिमिथली, उस जैसी ही, मा तदा, जो ज़्यादती की, अलैकुम, तुम पर। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने रोक दिया कि ज़्यादती जितनी की गई है ना उतनी ही आपने करनी है, उससे ज़्यादा बढ़ना नहीं है। ये कितना प्यारा हुक्म है कि ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर वो भी आगे बढ़ेंगे, और फिर इस तरह ये ज़्यादती बढ़ती ही चली जाती है। एक आम मामलात में एक छोटी सी बात कर रही हूँ, ये तो जिहाद के मामलात हैं ना, इनमें भी अल्लाह ताला ने एक ख़ास हद मुकर्रर कर दी कि जितनी वो ज़्यादती करेंगे उतनी ही तुम करो। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, वालम, और जान लो, अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, माअल मुत्तकीन, परहेज़गारों के ही साथ है। वानफिक, और खर्च करो, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वला तुल्कू, और ना डाल दो, बेअयदीकुम, अपने हाथों को, इला तहलुका, हलाकत में। अपने हाथों को हलाकत में कैसे डालना है आपने, कि कंजूसी करके, हलाकत है, ठीक है। वाहसिनु, और एहसान करो, यानी भलाई करो, अच्छा सुलूक करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। हाँ, उस सूरत में कि जब कोई आपके एहसान को एहसान समझ रहा हो, जान रहा हो कि मैंने तो इसके साथ बुराई की थी, इसने मुझे माफ़ भी किया और फिर एहसान भी कर दिया। और अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला यही है कि बहुत ज़्यादा अपने हाथों को हलाकत में ना डालो, ठीक है। जो तुम्हारे रिश्तेदारान, अहले कुराबत हैं, रिश्तेदारान हैं, उन साथ भी सलूक करो, अच्छा, और खर्च करो उनके ऊपर। तो ये एहसान जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और आखिरी आयत मुबारका है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन एक ही इसमें नुक्ता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हाजियों के लिए आसानी दी है, उम्रा और हज करने वालों के लिए, वो हम उसको डिस्कस करते हुए इस रुकू के अख्ताम को पहुँच जाएंगे। वातिमुल हज्जा, और पूरा करो हज को, उम्रत, और उम्रा को, लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए। फ़ाइन सिर तुम, अगर तुम रोक लिए जाओ, हमस्तई सारा, तो जो आसानी से मुयस्सर हो, मिनल हादी, की कुर्बानी में से।
वला तहलिकू और ना मुंडवाओ रूसाकुम अपने सार हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा पहुँच जाए अलहदियु कुर्बानी माहिल्ला उसके मुकाम तक, जब तक कुर्बानी उसके मुकाम तक नहीं पहुँच जाती यानी कि ज़िबा नहीं हो जाती आप उसके सार ना मंडवाएँ। मन काना मिनकुम मरीदन जो कोई तुम में से हो मरीज़न बीमार औ बिही या उसके हो अज़न तकलीफ़ मिर रअस ही उसके सर को कोई मसला हो कि डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया हो कि सर मुंडवाना नहीं है, फ़िदियतुन तो फ़िदिया है मिन सियाम में रोज़ों से और सदका या सदक़े से। हमेशा अल्लाह ताला ने रोज़े और सदका को फ़िदिया बनाया है। एक बहुत प्यारी इबादत है सदका भी और बहुत प्यारी इबादत है रोज़े भी। जो भी रखेगा उसके दिल पे अल्लाह का तकवा, अल्लाह की इबादत, नेकी का शौक़ पैदा होगा। और नुसुकिन या कुर्बानी, ठीक है। फ़ायदा अमिन तुम बस जब तुम अमन पा जाओ, फमन तमत्ता तो जो कोई फ़ायदा हासिल करे बिल उम्राती उम्रा का इलल हज हज के साथ उम्रा के साथ हज को मिलाने का, ठीक है। उम्रा किया साथ हज को मिला लिया तो जो कोई फ़ायदा हासिल करे फ़मस्त तयसरा तो जो मुयस्सर हो मिनल हदी कुर्बानी में से, फ़मल्लम यजिद बस जो ना पा सके कुर्बानी फ़सियाम तो रोज़े तलाताती 3 अय्यामिन दिन के फिल हज के दौरान व सबअतिन और 7 इज़ा जब रजा तुम लौट जाओ। 10 रोज़े हैं। तिल का ये आशरातुन 10 कामिलातुन मुकम्मल, ये मुकम्मल 10 रोज़े बनते हैं 3 हज के दिनों में 7 वापसी पे। दालिका लिमन लम ये जो है ली उसके लिए मन जो लम नहीं यकुन है अहलुहु रहने वाला हादिरी हाजिर मस्जिद हराम का, जो मस्जिद हराम का वहाँ पे रहने वाला नहीं है, मकीन नहीं है, ठीक है। लिमान उसके लिए जो वहाँ पे रहने वाला नहीं है, ये उसके लिए रोज़े हैं। वत्तकुल्लाह तो अल्लाह ताला से डरो, वालमू तो जान लो अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। यानी कि अल्लाह के हुक्म को कभी भी किसी भी हुक्म को हल्का जानना जो है इसके लिए वो सख्त बड़ा अज़ाब है। चाहे वो छोटा सा ही हुक्म हो लेकिन अल्लाह का हुक्म बड़ा ही होता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। हमारे लिए हम उसको बड़ा छोटा जानते हैं लेकिन अल्लाह ताला के सब हुक्म बराबर हैं, इसलिए अल्लाह ताला के हर हुक्म पर उसी तरह ही अल्लाह ताला पकड़ फरमाएंगे। कहते हैं इन्ना बादशाह रब्बी का लशदीद, आपके रब की पकड़ बड़ी शदीद है। हम जिन चीज़ों को बहुत आम लेते हैं, लाइट लेते हैं, इनको ना लें। अल्लाह ताला हम आफ़ियत अता फ़रमाए और हमको अल्लाह ताला के अपनी हुदूद को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला शरीयत के अहकामात पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रुकू नंबर 25 के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।